Good morning, class. Welcome here for this lecture of DBMS, that is Database Management System. So, in short, we will revise what we have seen up till now in this Database Management System in our very first unit. So, we have seen the definition of data, the definition of information, then what do you mean by database, what is database management system, what are the different types of database management systems, and what are the different databases. Then we have seen the different models of databases, and we have also seen the classification based on which those models are being formed. Then we have seen what is the different types of commands, what are the different commands in SQL. That is, the SQL is structured query language which is being used in most of the databases, and that is what we are going to use further. So we are going to study SQL, we are going to study the execution, and so other commands we will be having practical for those. So we have seen that SQL, and in that SQL we have seen three different types of commands like DDL, DML and DCL, that is data definition, data manipulation and data control. And then after that we have seen the design of a database. So what are the parameters that you have to consider in the design of a database, and what are the things that needs to be done for setting up for a database. So design is a different part and setting up a database, that is a different part, and we have already seen it. These are two different things. Setting अलग part है और उसका design अलग part है, ये हमने देखा था. So what we have seen in design, that is the process of designing a database. It involves database design objective, that is the purpose, then determining what data needs to be stored, that is requirement, then determining data relationships, then logically structuring data, ER diagram and normalization. Then we have seen what are the major steps in setting up a database. They are requirement analysis, conceptual database design, logical database design, schema refinement, physical database design and security design. So we have all these seen yesterday up till now. Now the next thing is the database cycle या फिर database life cycle भी हम इसको बोल सकते हैं. तो there are 8 different parameters, generally 7 to 8 stages in the design of in the life cycle of database we consider. Database के life cycle में generally हम 7 या 8 stages consider करते हैं. तो उसमें कि जैसे first stage is system definition. So we have already seen system definition, it comes with which kind of system it is. So what kind of system we are being using this database for. ये database हमको क्यों चाहिए, तो आपको crystal clear definition होना चाहिए कि आपको data store करना है, retrieve करना है, किस तरह का data store करना है. So that is first part, that is system definition. Second is database design. अब database design मतलब कि हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं कि database design में कितने सारे पैरामीटर्स कंसिडर होंगे. थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन. ओके, अब आपने क्या किया कि सिस्टम आपने समझ लिया, डेटाबेस डिजाइन भी कर लिया, अब मेन पार्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन. दैट मीन्स यू हैव टू इंस्टॉल द नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स, देन यू मस्ट हैव द नेटवर्किंग अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग. तो जो कुछ भी आपके लिए लगेगा, अब आप उसको जैसे हम एक ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो अभी तक हमने देख लिया कि हमको कौन सा ऐप चाहिए, उसका डिज़ाइन भी हो गया, अब हमको इंस्टॉल करना है, तो मतलब दैट इज इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंट मतलब the kind of database that you have created for each department, for every department, जो भी आपने बनाया, अब आप उसको यहाँ पर implement करना पड़ेगा. So that is implementation. मतलब आपको वो particular softwares कहाँ पे कौन सा डेटाबेस आपको इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. देन लोडिंग और डेटा कन्वर्जन. अब वो जो आपने इंस्टॉल तो कर लिया, यानी हमने क्या किया कि हमने वो डेटाबेस मतलब हमने एक तरह की एक अलमारी बना के रख ली, लॉजिकल स्ट्रक्चर डिज़ाइन विजन सब करके लाके हमारे घर में रख दिया, कहाँ पर कितनी अलमारी होना वो सब रख दिया. अब उसमें हमको सामान रखना है. सो दैट इज लोडिंग और डेटा कन्वर्जन. कन्वर्जन मतलब ऐसा होगा कि द प्रीवियस डेटा मस्ट बी इन सम अदर फॉर्मेट, वो कुछ और फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ पर हमको जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में उसको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा. हो सकता है पहले किसी और फॉर्म में हो, फिर किसी और फॉर्म में हो. सो देयर हैज़ टू बी कंपेटिबिलिटी, द बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, द फॉरवर्ड कंपेटिबिलिटी. एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो जैसे अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सपोज वो इंग्लिश में दिए हैं, तो फिर वो कन्वर्ट करके हिंदी में वापस स्टोर करना है, तो इस तरह का चेंज ऑफ लैंग्वेज. तो ऐसी डाटा के जो फॉर्मेट्स है, आपने जैसे जिप फाइल देखी है, रार फाइल देखी है,
तो आप रार फाइल रीड कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन आप रार फाइल को एक्सट्रैक्ट करके जो कुछ भी आपने डाला होगा आप देख सकते हो। जिप फाइल को आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो क्या? नहीं, यू कैन नॉट डायरेक्टली रीड द जिप फाइल। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट्स। तो मतलब क्या है, डेटा तो वही था, सिर्फ उसका कुछ फॉर्मेट अलग था। जैसे आप सभी को पता होगा कि हाउ डज द कंप्यूटर स्टोर डेटा इन द बाइनरी फॉर्म 0 1, तो फिर ये हम पढ़ सकते कि ये हम नहीं समझ पाएंगे, बट उसी के बेसिस पे वो सारा हम रिट्रीव कर सकते। तो यही हमको डेटा लोड करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो डायरेक्टली आप लोड करो अगर वो आपसे कंपेटिबल है, या तो फिर कन्वर्ट करो। देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन कन्वर्जन। फिर इसके बाद में कुछ जो ऐप्स है, कुछ जो एप्लीकेशन है, ये अगेन यू हैव टू कन्वर्ट देम कि इसमें अगर ये वैल्यू आती है तो ये हिसाब से होना चाहिए। द सेम अप्लाइज फॉर डेटा एंड द सेम अप्लाइज फॉर एप्लीकेशन। लोडिंग एंड एप्लीकेशन कन्वर्जन, और लोडिंग और डेटा कन्वर्जन एंड एप्लीकेशन कन्वर्जन। उसके बाद में टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। अब हमने क्या किया, डेटाबेस डिजाइन किया था, उसमें हमने सारी वैल्यूज डाल दी। अब हम उसको टेस्ट करेंगे, अलग अलग क्वेरी फायर करेंगे कि देखेंगे हमको प्रॉपर वैल्यूज मिलती है क्या। हमने डेटाबेस क्यों बनाया, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन एक जगह पे सिक्योर करनी है, स्टोर करनी है, सेव करनी है, और हमको बार बार उसको यूज करना है। और उसमें डेटाबेस इसलिए भी बनाया था, कई सारे जो इश्यूज रहते, रिडंडेंसी है, एटॉमिसिटी है, इंटीग्रिटी, ये सब एनोमलीज है, ये सब अवॉइड होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। नाउ वील गो फॉर द टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। विल फायर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेरीज एंड वील सी आर वी आर गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट। उससे हमको उस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्या। फिर वो हो जाएंगे टेस्टिंग और वैलिडेशन का पार्ट। और अगर वो सब सही आ गया तो फिर फाइनल पार्ट आ गया ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब उसको डायरेक्टली यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, वो डेटाबेस आपने सब जगह इंस्टॉल कर लिया और सब जगह पे वो यूज करना शुरू कर दिया, हर डिपार्टमेंट में जहां जहां पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर उसमें यूज किया मतलब उसको एडिट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसको जो परमिशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने दी हुई है। इट इज एज गुड एज अ वेबसाइट कि आपने वेबसाइट अपलोड कर दी, अब आप उस पर इंक्वायरी भी कर सकते हो, फीडबैक भी दे सकते हो, उस पर कोई एक फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो, उस पर एडवर्टाइजमेंट है वो भी देख सकते हो, या फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हो कई सारी चीजें उसके बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ परमिशन दैट यू हैव। जिस तरह की आपको परमिशन है उसके बेसिस पे आप उसके साथ जो कुछ भी ऑपरेशंस कर सकते हो। देन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये तो सब हो गया। अब इसके बाद में हमने इसको मॉनिटर एंड मेंटेन। ठीक है, ये तो सब हमने बना लिया टेस्ट के लिए ऑपरेशन में। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उस पर हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि ओके हर जगह पे हमको प्रॉपर वैल्यूज मिलती है क्या, डेटाबेस कहीं करप्ट तो हो नहीं गया, उसमें कुछ और इश्यूज तो नहीं है, और उसको मेंटेन करना। अब मेंटेनेंस वी डू नॉट नीड टू डिस्कस, मेंटेनेंस हम सभी को पता है। हाँ, सिर्फ अब इतना होता है कि सर डेटाबेस में क्या मेंटेन करना पड़ेगा। तो डेटाबेस में जो स्पेसिफिक फाइल्स है, कुछ अपडेशंस है, कुछ ये है, और जो कुछ भी इसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, जैसे सपोज ओएस का कुछ है या फिर कहीं पे आप कहीं और यूज़ कर रहे हो, आपको ये इश्यूज काफ़ी बार आए होंगे। जैसे आपने एमएस वर्ड में काम किया होगा 2007 में, फिर 2010 में कुछ और होता। इवन सिंपल जो हमारे मोबाइल्स रहते हैं, हम जब मोबाइल चेंज करते तो पहले वाले और दूसरे जो मोबाइल हम चेंज करते उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क रहता। प्रोसेस तो सब में वही रहना है, सब में कॉन्टैक्ट स्टोर करना है, मैसेजेस स्टोर करना है, व्हाट्सएप है, मल्टीमीडिया है, यूट्यूब है, गूगल है, दुनिया भर के हैंडल्स है, ट्विटर्स है, एंड सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐप्स। तो सारी चीज़ें तो वही है, लेकिन सबके कुछ ना कुछ टेक्निक अलग है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज अलग है, उबुंटू अलग है, और भी कई सारी है, और उसमें भी फिर उसके वर्जन है 7, 10 लाइकवाइज। तो इसलिए उसको हमारा मेंटेनेंस जरूर रहता है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। So this is how the database life cycle is completed. System definition, database design, database implementation, loading or data conversion, application conversion, testing and validation, operations and after operations, operating and maintenance. अब इसमें एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि चलो ठीक है, ये तो हमने देख लिया स्टेजेस, लेकिन ऑपरेशंस के बाद में सपोज हमको पता चला कि यहाँ पर कुछ इश्यूज है कि ठीक है, या फिर टेस्टिंग वैलिडेशन के सामने कुछ इश्यूज ख्याल में आए, या फिर एप्लीकेशन प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हो रहे, या फिर डेटाबेस ही प्रॉपरली लोड नहीं हो रहा। तो ये जितने सारे इश्यूज है ये हमको ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये ओवरकम करने के लिए हो सकता है हमको डेटाबेस डिज़ाइन में चेंज करना पड़े, कुछ एप्लीकेशंस में चेंज करना पड़े, और कुछ करना पड़े। बट व्हेन समथिंग हैपन, समथिंग नीड्स टू बी डन, सो दैट इज द सिंपल थिंग। एक फ्रेज है कि जब कुछ होता है तो कुछ करना पड़ता है। तो अगर इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो यू हैव टू ओवरकम ऑल दिस इश्यूज, एंड देन अगेन यू हैव टू, ये सब होने के बाद में डेटाबेस डिज़ाइन में फिर फर्क पड़े, डेटाबेस
डिज़ाइन। फिर डेटाबेस डिज़ाइन फिर से करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई अपडेट करना पड़ेगा एंड देन यू कैन यूज इट। सो व्हेन ऑल गोज वेल, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर ये 8 स्टेप्स हम उसमें बोल सकते हैं। फर्स्ट इज सिस्टम डेफिनेशन, सेकंड इज डेटाबेस डिजाइन, थर्ड इज डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन, फोर्थ इज लोडिंग और डेटा कन्वर्जन, फिफ्थ इज एप्लीकेशन कन्वर्जन, सिक्स्थ इज टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, सेवंथ इज ऑपरेशंस एंड एट इज मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस एप्लीकेशन सिस्टम लाइफ साइकिल, या फिर हम इसको डेटाबेस के लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। मतलब उसकी लाइफ साइकिल शुरू कैसी हुई, ये डिसाइड करनी चाहिए कौन से सिस्टम में हमको क्या डेटाबेस यूज करना है, फिर डेटाबेस बनाया, उसको इंप्लीमेंट किया, उसको लोड किया, उसको अनलोड किया, उसको टेस्ट किया, वैलिडेट किया और वो यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द ओवरऑल डेटाबेस एप्लीकेशन सिस्टम लाइफ साइकिल। अब डेटाबेस की हमने 3 चीजें देखी, सेटिंग अप ऑफ डेटाबेस वो एक अलग पार्ट है, सेटिंग अप ऑफ डेटाबेस, सेटिंग अप डेटाबेस उसमें कुछ अलग इश्यूज है, डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस वो एक अलग है, और डेटाबेस सिस्टम लाइफ साइकिल या फिर डेटाबेस एप्लीकेशन सिस्टम लाइफ साइकिल, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स। ये देख लो, डेटाबेस डिजाइन में क्या आता है, ये सारी चीजें, डेटाबेस स्टेप सेटअप में ये सारी चीजें, और डेटाबेस लाइफ साइकिल में ये सारी चीजें। वो एक जैसी लगती है हमको, सारी बातें बिल्कुल एक जैसी लगती है, बट यू हैव टू स्टडी डीपली, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम। कितना फर्क है कि डेटाबेस सेटअप करने में, डेटाबेस लाइफ साइकिल में और डेटाबेस डिजाइन करने में जो डिफरेंस है वो हमको यहाँ पर ख्याल में आने चाहिए। ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज डेटाबेस स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब ये डेटाबेस स्ट्रक्चर मतलब ये, अगर ये डायग्राम हमने यहाँ पर समझ लिया तो ये हमको डेटाबेस स्ट्रक्चर पूरा समझ में आता। ये डायग्राम ही मतलब पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर का यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। दिस डायग्राम इज अबाउट डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब डेटाबेस स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि भैया डेटाबेस बेसिकली जो एकदम बिगिन करते हैं, विल गो इट थ्रू दिस वे, कि एकदम आखिरी से शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले ये सवाल आएगा कि ये डेटाबेस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्यों है, वाई दे आर देयर, क्योंकि हमको ये चाहिए, क्योंकि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और किसी भी कॉम्बिनेशन की कोई भी इन्फॉर्मेशन कभी भी चाहिए, वो हमको हमेशा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसलिए डेटाबेस है। तो मतलब डेटाबेस है तो वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं, डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। कैसे रिट्रीव कर रहे थे, वो क्वेरीज फायर करके, DML कमांड्स वगैरह देके, कुछ ना कुछ कमांड देके उससे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। तो अब यहाँ पर हम कैसे पढ़ते कि अगर सपोज हमने कंसिडर कर लिया कि ये एक बहुत बड़ा एक ड्रम है, तो ये ड्रम में हमने क्या किया, बहुत सारा डेटा लाके डाल के रख दिया। जैसे सपोज ये एक बहुत बड़ा एक कमरा है, इसमें हमने 50, 100 ऐसे फिर 1000 अलमारी ला के रख दिया यहाँ पर, उसमें सब में डेटा ही डेटा है। तो ये हो गया आपका डेटा स्टोरेज या फिर डिस्क स्टोरेज। तो ये आपका डेटाबेस हो गया, यहाँ पर आपने पूरा डेटा ला के डाल दिया है। अब ये डेटा ला के डालने के बाद उसमें क्या क्या रहेगा, तो पहले हम ये देखते कि यहाँ पर इस डेटाबेस में क्या क्या है। तो मेन चीज़ डेटा तो है, यानी जो भी डेटा था वो तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है ही है। मतलब ये जो हमने अलमारीज ला के रख दिए, इसमें सब में डेटा है। सो इन दिस डिस्क स्टोरेज देयर इज डेटा। उसके बाद में नेक्स्ट है इंडाइसेस। इंडाइसेस मतलब जिसको हम इंडेक्सेस की बात करते हैं उस तरह का, कि जैसे सपोज आप कॉलेज में आ गए, तो कॉलेज में इतनी सारी बिल्डिंग है, तो हमने नंबरिंग किया है 1 2 3 4। फर्स्ट बिल्डिंग मेन बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग XYZ डिपार्टमेंट, थर्ड बिल्डिंग दिस डिपार्टमेंट, फोर्थ बिल्डिंग अदर डिपार्टमेंट, 7th बिल्डिंग दैट डिपार्टमेंट, 8th बिल्डिंग ये। तो इस तरह से फिर हमने इंडेक्सिंग किया है। तो अब यहाँ पर डेटा जो रखा है वो भी वैसा ही इंडेक्स किया हुआ है। जैसे आपने सपोज कि आपने एक बुक ओपन करी और बुक में 25 चैप्टर है, तो उस पर दिया रहेगा कि किस पेज पे कौन सा चैप्टर है। ओके, पेज नंबर 1 XYZ चैप्टर एंड इट इज कंटिन्यूड फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 27। उसी तरह सेकंड चैप्टर किस पेज से शुरू होता है और किस पेज तक खत्म होगा, दैट इज अबाउट द सेकंड चैप्टर। तो वैसे ही यहाँ पर एक इंडेक्स बना हुआ है, यहाँ पर भी एक इंडेक्स बना है जिस इंडेक्स में हमको पूरी इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद में थर्ड पार्ट है इसमें डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी मतलब कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हमको नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ और होंगे या फिर उनके हिसाब से कुछ और होंगे। तो वो वहाँ पर दिया एक डिक्शनरी कि जो जो भी इसमें लिखा हुआ है, जो जो इसमें वर्ड्स आते हैं, जैसे वहाँ पे लिखा है सपोज इंडेक्स में आपको दिया है कि पेज नंबर सपोज खाता है कि प्राइमरी की ऑन दिस पेजेस, मतलब ये पर्टिकुलर जगह पे सारी प्राइमरी कीज है। अब प्राइमरी कीज मतलब क्या है, तो फिर उसका मीनिंग वहाँ पे डेटा डिक्शनरी भी उसके अंदर है। एंड देन स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा मतलब क्या होता है, किसी भी डाटा, सपोज मैंने आपको बोला कि 4 स्टूडेंट्स, आई हैव सिलेक्टेड 4 स्टूडेंट्स, ओके, एंड आई हैव सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट दे 4 आर हैविंग हाइट अबव 5.10। तो कुछ तो भी उसमें स्टैटिस्ट लगा, और उसके बाद में दे आर हैविंग दिस मच परसेंटेज, दे आर हैविंग दिस मच पॉइंटर।
एंड आई हैव स्टडी सिलेक्टेड देम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 50, आई हैव ट्राइड दिस कॉम्बिनेशन। तो मैंने कुछ तो भी जो डेटा था उसको कुछ ऐसा प्रोसेस करके बना के रखा है, दैट इज स्टैटिस्टिकल। तो ये भी यहाँ पर है, मतलब ये आपका डिस्क स्टोरेज सबसे एक लेवल है, एक डिस्क स्टोरेज सबसे लो लेवल वाला पार्ट है। यहाँ पर आपका क्या पूरा डेटा रखा हुआ है, पूरा डेटाबेस, मतलब ये उसका स्ट्रक्चर बेसिकली बोला तो यही है कि वहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल पे पूरा डेटा रखा हुआ है। वो डेटा मीनिंग क्या होता है उसकी डिक्शनरी रखी है, उसको इजीली कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इसलिए वहाँ पे इंडेक्स रखे और कुछ वहाँ पे कैलकुलेशंस भी रखे ताकि कई चीज़ें आसानी से हो जाए, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा। अब ये सब तो यहाँ पर रखा है, ठीक है, ये डेटा तो हमने पूरा का पूरा यहाँ पर रख दिया, लेकिन ये डेटा चाहिए किसको? तो अब सबसे पहले जो चाहिए एकदम सिंपल है, वो ये सबसे पहले चाहिए नेव यूजर्स को। नेव यूजर मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे मेरा फोटो जा रहा है उसके ऊपर, नेव यूजर्स मतलब वो कोई ऐसा कुछ एक्सपर्ट नहीं है, कुछ उस्ताद नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको डेटाबेस के बारे में कुछ भी ऐसा खास मालूम नहीं है, उसको सिर्फ क्या चाहिए, सिंपल वैल्यूज चाहिए। तो नेव यूजर्स क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे जो आपने एप्लीकेशन इंटरफेस बनाया, इंटरफेस मतलब तो आपको समझता है ना, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो उसका जो पहला पेज आता है जिस पे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो हो गया वो पोर्टल का फर्स्ट पेज, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, और फिर उस पर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। यानी आपके और मेरे बीच में जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। तो ये क्या करेंगे नेव यूजर्स, ये जो एकदम एप्लीकेशन इंटरफेस है, यानी उनको कोई मतलब नहीं है कि किसने कैसे डेटाबेस बनाया, कहाँ पर क्या लॉजिक लगाया, क्या स्टोरेज है, कुछ भी नहीं। वो क्या करेंगे, वो आके उनको कुछ तो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी और वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। तो एक वो यूज़र हो गए। सेकंड कौन है, हो गए एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के पहले भी थर्ड है सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स मतलब उनको अच्छी तरह से पता है कि इस डेटाबेस को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, या फिर वो डेटाबेस में चेंज, एडिट, अपडेट, डिलीट भी करना जानते हो, तो वो स्पेसिफिक क्वेरी फायर करेंगे क्योंकि उनको पता है कि एग्जैक्टली इसका टेक्निकल यूज़ कैसे लेना है। दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड यूजर। जैसे सपोज कुछ टूल्स है, जैसे अपने जो सॉफ्टवेयर है, सपोज हम कटिया की बात करते हैं, तो हर बंदा तो कटिया यूज़ नहीं कर सकता जब तक वो पढ़ेगा नहीं, सीखेगा नहीं। तो जो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स है, दे हैव द इंफॉर्मेशन एंड दे हैव द कैपेसिटी टू यूज दैट स्पेसिफिक टूल्स, तो वो उस तरह के सेकंड यूजर्स है डेटाबेस के। उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या है, जिन्होंने एक्चुअली डेटाबेस बनाया है, जो डेवलपर्स है, जिन्होंने कोई भी लैंग्वेज यूज़ किया, सपोज जो भी लैंग्वेज किया, सी किया, CPP किया, जावा किया, या फिर जो भी SQL किया, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके जिन्होंने डेटाबेस का प्रोग्रामिंग किया हुआ है, प्रोग्रामिंग किया कि ओके ये टेबल में से अगर ऐसी क्वेरी फायर होंगी तो इसको ये वैल्यू मिलना चाहिए। मतलब जो कुछ भी प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का पार्ट है जो बैकएंड में हुआ है, वो सब कुछ किया है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ने। दे आर राइटिंग। एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब वो है कि जिसने डेटाबेस के पूरे राइट्स डिसाइड किए, क्योंकि डेटाबेस में कुछ राइट्स नेव यूजर्स को होंगे, कुछ सोफिस्टिकेटेड यूजर को होंगे, कुछ एप्लीकेशन प्रोग्रामर को होंगे, और कई राइट्स ऐसे होंगे, कुछ ऑथोरिटीज़ की होंगी, राइट्स की कुछ लेवल होंगी, 1 2 3 4, वहाँ पे कुछ एडमिन बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब जिसने डिसाइड किया कि डेटाबेस कौन सा यूज़ करना है, उसको अपडेट कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, यानी डेटाबेस का जो मालक है वो हो गया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सिंपल। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, उसने एप्लीकेशन प्रोग्रामर को बुलाया और बोला कि भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम हमको चाहिए। तो कोडिंग का पार्ट पूरा एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने किया। सोफिस्टिकेटेड आज यूजर्स ने आके उसको अपने हिसाब से यूज़ किया, और नेव यूजर जो बिल्कुल नए, उनको कोई लेने देने नहीं, उन्होंने सीधे कुछ भी टाइप करके अपना सोल्यूशन वहाँ पर मिल लिया। तो एक्चुअली सोफिस्टिकेटेड यूजर्स और नेव यूजर्स दोनों भी यूजर्स ही है। लेकिन जब सोफिस्टिकेटेड यूजर्स की बात है, ये थोड़े से एनालिटिकल पर्सन है, वो डेटाबेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो अपडेट एडिट भी उसको कर सकते हैं, उनको ठीक है उस तरह से ऑपरेशंस वो कर सकते हैं। दे आर लिटिल बिट more relevant with that particular database, they are this kind of users, but at the end they are users only। तो इसमें क्या, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक उसके बाद में यूजर, और एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो ये 3 तरह के लोग जो डेटाबेस यूज कर सकते हैं। और डेटाबेस में क्या है वो हमने देख ही लिया। तो हमने डेटाबेस देख लिया और डेटाबेस के यूजर देख लिए। अब ये सब लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखो कि पहले वाले ने एप्लीकेशन इंटरफेस से, यानी यूजर ने क्या किया, एक एप्लीकेशन है जिससे थ्रू बात करता है, तो उसने कुछ तो भी पूछा एप्लीकेशन इंटरफेस से। तो वो एप्लीकेशन इंटरफेस से पूछने के बाद में वो हो गया एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड में।
मतलब जब एप्लीकेशन पे उसने टाइप किया कि सपोज आई वांट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप बिटवीन द एज 18 to 25, ऐसे क्वेरी लिखा। कुछ उसने खास लॉजिक वॉजिक नहीं, सिंपल कि 18 से 20, और उसने सादी लैंग्वेज में लिखा, तो वो डेटाबेस को सपोज समझ आती है वो लैंग्वेज उस तरह से। तो वो एप्लीकेशन इंटरफेस से जब वो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, तो जहाँ पर वो कोड लिखा है वहाँ पर वो क्वेरी जाएंगी कि ओके इस तरह का अगर कुछ लिखता है तो उसमें से उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। इवेल्युएट करने के बाद में वो जाएंगी डेटा में, वो जाएंगे सीधे सीधे डेटाबेस में। सिंपल है कि इसने एक क्वेरी लिखा था, एप्लीकेशन इंटरफेस जहाँ पर उसको मिला था वहाँ पर उसने कुछ टाइप किया, वो गया एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड को, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट बना है, एप्लीकेशन जो प्रोग्राम बना है वहाँ पर हो गई, और उसने देखा कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और फिर भेज दिया क्वेरी इवेल्युएशन इंजन को। मतलब उसने सब, जैसे मैंने क्वेरी पूछा कि आई वांट टू नो द एज ऑफ द हाइट ऑफ द पीपल बिटवीन द एज 25 to 35 इन माई इंस्टीट्यूट, तो ये मैंने एक लिखा क्वेरी, और ये क्वेरी फिर वो प्रोग्राम ने पढ़ा कि ओके इसकी इस तरह से क्वेरी है, ओके ओके चलो ठीक है, और उसने भेज दिया क्वेरी इंजन को। क्वेरी इंजन ने क्या किया, उसको देखा, उसको इवेल्युएट किया, ओके तेरी क्या क्वेरी है, तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, और उसको पता है कि ओके ठीक है इसकी क्वेरी है, तो उसने क्या किया, उसको भेज दिया सीधे सीधे फाइल मैनेजर के पास, या तो उसने फाइल मैनेजर के पास भेजा या तो बफर मैनेजर के पास। अब बफर मैनेजर मतलब क्या है, तो बफर मतलब आप सभी को पता होगा, बफर का जो कंसेप्ट है कि जैसे जो कैश में जो डाटा रहता है, कैश CACHE कैश, कैश डाटा मतलब कि आप जैसे गूगल पर जाते हो तो जो फ्रंट पेज गूगल का आता है, तो अगर आपकी सपोज इंटरनेट का कनेक्शन नहीं भी रहा और आपने ओपन किया तो वो पेज जनरली आता है, डिस्प्ले होता है, मतलब वो वहाँ पर बाहर ही निकाल के रखा है। जैसे कई दुकानों में हम लोग जाएंगे तो कुछ चीज़ें जिनका सेल बहुत होता वो उसको ऊपर ही निकाल के रखता है ना। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स है, जैसे उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के रखेंगे, जैसे गेहूं के पोते बना के रखते हैं, जैसे आप कहीं पर जाओगे तो कुछ उसके कंबाइंड पैक्स बना के रखेंगे, मतलब वो रेडीली अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग्स अबाउट द टेक्नोलॉजी, तो वो जो पेजेस, सपोज आपने जो पेजेस सर्च किए, जो आप बार बार सर्च करते वो पेज फिर कैश मेमोरी में आते हैं। कैश मेमोरी में आते मतलब उसके लिए आपको मेन मेमोरी तक नहीं जाना पड़ता। कैश मेमोरी ऐसे समझ लो कि वो घर के अंदर के आपका कुछ तो भी सामान है वो बार बार यूज़ का आपको काम बढ़ रहा, तो आपने आपके फाटक के पास ला के रख दिया कि जैसे कोई भी आएगा उसको अंदर तक जाके वो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो हो गई थी कैश मेमोरी। तो उसको हम लोग बोलते हैं जो रखा हुआ है हमारे पास स्टोरेज में, दैट इज कॉल्ड एज बफर। तो वो बफर में देंगे क्वेरी इंजन, मतलब अगर उनके पास ऑलरेडी वो है तो बफर वाले को बोलेगा कि भैया इसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टली दे दो। अगर बफर वाले के पास नहीं है तो फाइल मैनेजर बोलेंगे ओके ठीक है, वो जाएगा डेटा मांगने के लिए। अब हो सकता है वो जाए पहले इंडाइसेस में चेक करने के लिए। अब बफर में सपोज इन्फॉर्मेशन थी तो बफर ने क्या किया, वो डेटा सीधा उठा के दे दिया। उसको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने निकाल के रखा है साइड में, ये ले ले भैया इन्फॉर्मेशन, जो भी चाहिए तेरे को इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कर दी। लेकिन अगर उसको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं मिलती है बफर में, तो फाइल मैनेजर क्या करेंगे, इंडेक्स में जाके चेक करेंगे कि इसको क्या चाहिए। ठीक है चलो आपको XYZ इन्फॉर्मेशन चाहिए टेबल में से, वो टेबल में वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर, इसलिए इंडेक्स चेक करेंगे। और जैसे इसको इंडेक्स चेक करेंगे, जैसे अपन जाते ना, अपन कहीं पे जाते तो हम बोलते हैं कि भैया मेरे को सपोज जैसे आप एग्जाम की प्रोसेस में आते हो, एडमिशन की प्रोसेस में, तो आपको सपोज वेरिफिकेशन करना है तो हम बोलते हैं वो डेस्क पे जाओ, फीस भरना है तो यहाँ पर जाओ। तो वो वैसी वो जो काम है तो ये फाइल मैनेजर ये काम करेंगे, ओके आपको फीस भरनी थी, ठीक है फीस भरने का इनके पास चले जाओ, ये डिपार्टमेंट है कैश सेक्शन में। तो ऐसे वो इंडेक्स में जाके देखेंगे कि इसका ऑपरेशन कहाँ पर है। अगर उसको पता है तो डायरेक्टली वो डेटा उठा के उसको दे देंगे, और अगर नहीं पता है तो इंडेक्स में चेक करके वो डेटा उठा के वो पर्टिकुलर यूजर को वहाँ पर मिल जाएगा। सो दैट सिंपल कंसेप्ट इज अबाउट दिस डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर इतना ईजी है कि यूजर आएगा, वो अपना एक कुछ तो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस में, यूज़र ने कुछ तो भी एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में कुछ तो भी छोटा सा एक अपना प्रोग्राम लिखा है, छोटी सी क्वेरी लिखी है, क्वेश्चन पूछा, उन्होंने दिया एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड को, ऑब्जेक्ट कोड ने दिया क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन को, और उसने दिया पहले बफर को और फिर फाइल मैनेजर को, और फाइल मैनेजर ने लाके वो रिट्रीव करके उसको रिटर्न कर दिया। तो दैट सिंपल। अब सब यूजर्स का हम ऐसे ही देखते हैं। अब अगर एप्लीकेशन प्रोग्रामर की आप बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, कंपाइल एंड लिंक करेंगे और DML क्वेरीज बनाएगा, फिर उसको कंपाइल ऑर्गेनाइज करके फिर क्वेरी इवैल्यूएशन को इंजन को देगा। अब इसके बाद में ये भी बात है कि सपोज मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी तो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन ये भी चेक करेगा कि वेदर आई हैव राइट टू हैव दिस इंफॉर्मेशन, कि ये इंफॉर्मेशन रखने के लिए मुझे ऑथोरिटीज है या नहीं है। अगर सपोज
तो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करेगा कि ठीक है आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी तो मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो भी वहाँ पर जाकर देखेगा। दैट इज अगेन, तो ये जो फाइल मैनेजर है फिर वो ऑथोरिटीज चेक करेगा। तो ये आ गया फंक्शन स्टोर मैनेजर का। मतलब ये एक हमने देखा था सबसे पहले डेटाबेस डिस्क स्टोरेज, दूसरा आ गया स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर ने क्या किया, बफर स्टोरेज है स्टोर मैनेजर के पास। क्या क्या है, स्टोर मैनेजर के पास वी आर हैविंग बफर स्टोरेज, उसके बाद में देयर इज फाइल मैनेजर, बफर स्टोरेज, फाइल मैनेजर, फिर ऑथोरिटी एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी। सपोज मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगा बट मैं ऑथराइज्ड नहीं हूँ, जैसे सपोज मैं एटीएम से पैसे निकाला लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो फिर तो मुझे ऑथोरिटी नहीं वो चीज़ करने की, तो वो चेक करेगा। और ट्रांजैक्शन मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर ये जो कुछ भी हमारा लेन देन है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। तो ये फिर आपको ट्रांजैक्शन के थ्रू वैल्यूज मिलते चले जाएंगे। तो ये था सबसे सिंपल फर्स्ट यूज़र का। अब जो सेकंड यूज़र आता वो एक कोड लिखेगा, उसने एक प्रोग्राम लिखा, फिर उसको कंपाइल करना पड़ता है। आपने अगर CCP भी यूज़ किया होगा तो आपको बताऊंगा, वो कंपाइल करेंगे, उससे कुछ तो भी क्वेरी बनाएंगे, डाटा मैनिपुलेशन क्वेरी, फिर वो ऑर्गेनाइज करके वो देगा फिर क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन को कि ठीक है अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम लिखा और वो जाके फिर वो रन कर रहा, तो उसको कौन सी वैल्यूज मिलना चाहिए ये भी वहाँ पर आ गया। अब जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र है, प्रोग्रामर ने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा, फिर उसको कंपाइल किया मतलब उसको कन्वर्ट किया उस भाषा में जो भाषा वो पर्टिकुलर डेटाबेस को समझ में आती। क्योंकि प्रोग्रामिंग तो हो सकता है जावा में करे या हो सकता है कोई और लैंग्वेज में करे, लेकिन डेटाबेस को जो समझ में आती है लैंग्वेज, तो वो तो सपोज कोई और लैंग्वेज है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाइल। जैसे हम ट्रांसलेटर बोलेंगे, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ और आपको कन्नड़ में समझना चाहिए, तो मैं इंग्लिश में भले ही बोल रहा हूँ लेकिन बीच में एक ट्रांसलेटर रहेगा जो कन्वर्ट करेगा। तो यही काम यहाँ पर कंपाइलर कर रहा, वो उसको कंपाइल करेगा, चेक करेगा उसमें कुछ इश्यूज है नहीं है, उसको लिंक करेगा DDLC दैट इज डायनेमिक लाइब्रेरी, और वो सीधे सीधे भेज देगा उसको यहाँ पे क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के पास, या फिर वो DML क्वेरीज उसकी बनाएगा और फिर वो उसको फिर से कंपाइल करेंगे और ऑर्गेनाइज करके भेजेगा क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के पास। मतलब ये सभी यूजर्स की जो भी क्वेरीज आएंगी वो आएंगी क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के पास। क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करेगा, वो सब भेजेगा स्टोर मैनेजर के पास। स्टोर मैनेजर उसको देख चेक करेगा बफर में है क्या, फाइल मैनेजर के पास है क्या, उसको ऑथोरिटी है क्या, उसका ट्रांजैक्शन कैसा है, और वो सब कंप्लीट करके रिटर्न करेगा। थर्ड आता है फिर सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, उन्होंने क्वेरी फायर की DML क्वेरी, वो फिर से जाएंगे इसके पास, यहाँ से इधर फिर से डाटा रिटर्न। एंड फाइनली इट इज ऑल अबाउट द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेंगा, वो सारी क्वेरीज बनाएंगा और देखेगा कि तुमको इतने राइट्स है कि नहीं है, किसको क्या राइट्स देना है, किसको क्या नहीं देना, तो वो भी सारी जाएंगे डेटाबेस में। मतलब अब यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं कि नेव यूजर्स ने एक क्वेरी फायर की थी, वो गई एप्लीकेशन इंटरफेस के थ्रू, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के थ्रू, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के थ्रू गई वो सीधे सीधे डिस्क स्टोरेज में। एप्लीकेशन प्रोग्राम, किसी ने एक प्रोग्राम लिखा, वो दिया कंपाइलर को, कंपाइलर ने उसको क्वेरीज बनाया DML, फिर उसको ऑर्गेनाइज करके फिर भेजा क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन को। सोफिस्टिकेटेड यूजर ने कुछ तो भी एक क्वेरी लिखी, तो वो क्वेरी DML क्वेरी हो सकती है, डेट इज डेटा मैनिपुलेशन के लिए, एडिट, अपडेट, इंसर्शन, डिलीट, तो वो भी गई क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन को। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यूज़ किया और उसने क्या किया, उसने सब भेजा DDL इंटरप्रेटर को। मतलब जहाँ पे जब डेटा डिफाइन हो रहा था तो वो सारी क्वेरीज उसने डेटा DDL कमांड के थ्रू उसने सारे DDL कमांड दिए डेटा इंटरप्रेटर को, तो सब फाइनली जाके आ गए डेटाबेस में। तो यहाँ पे बेसिक जो था, अब इसके अपन देखते लेवल्स। तो पहले लेवल है यूजर्स, तो उसमें आगे नेव यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, क्वेरी, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक उसके बाद में पार्ट है डिस्क स्टोरेज, मतलब पूरा डेटाबेस, उसके बीच में पार्ट है स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर के फंक्शन हम देखिए, बफर में चेक करता, फाइल में, ऑथोरिटी और ट्रांजैक्शन, और इनके बीच में फिर अब जो कुछ भी होता है ये सब क्या, ये उसकी प्रोसेस है। ये कैसी है, उसकी प्रोसेस है कि वो प्रोसेस में पहले कंपाइल करेगा कोड को, या फिर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड देखेगा, DML क्वेरीज चेक करेगा, वो DDL इंटरप्रेटर के पास जाएगा, डिक्शनरी में जाके चेक करेगा कि इन्होंने बोला है कि ये पर्टिकुलर पर्सन को एडमिन बनाना है, तो एडमिन बनाना है मतलब क्या, कि उसको राइट्स देना है, कौन कौन से राइट्स देना है वो डिफाइन करेगा, और ये सब फिर फाइनली जाएंगे इस डेटाबेस के अंदर। तो इसमें 4 लेवल्स आ गई। फर्स्ट लेवल आ गई काइंड ऑफ यूजर, मे बी ए न्यू यूजर और सोफिस्टिकेटेड यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर,
एंड एडमिनिस्ट्रेटर। देन नेक्स्ट उसके बाद में फिर आएंगे जो दैट इज द टेक्निकल पार्ट, प्रोसेसिंग मैनेजर। इसको ऐसा कुछ नाम नहीं है, लेकिन सब इसको हमने बोल दिया प्रोसेसिंग मैनेजर। वो पूरा वहाँ पर सब चीज़ को प्रोसेस करके स्टोर में भेज रहा है। स्टोर वाला चेक कर रहा, करेक्ट कर रहा, देख रहा ऑथोरिटी है कि नहीं, और उसको बाहर से सामान वहाँ से निकाल के ला देगा। और वो सामान कहाँ पर रखा है, वो रखा है ये डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस मतलब अपनी एक दुकान हो गई, ये दुकान का सपोज ये मैनेजर हो गया, और यहाँ पर जो है हम लोग दुकान से खरीदने आए थे सामान, उसके बीच में सिर्फ एक प्रोसेस यहाँ पर आ गई। जैसे आप एक शॉप में गए तो ये हो गई शॉप, ये वो शॉप का मैनेजर है, और उसके बाद में ये आप यूज़र है। तो आपने किया कि आपने इसको कुछ चिट्ठी दी, इसने चेक किया क्या है क्या नहीं, और वो आपको दे दिया। लेकिन जो आपने दिया, जो आपके और स्टोर मैनेजर के बीच में ये आ गया एक प्रोसेसिंग का पार्ट, कि स्टोर मैनेजर को जो समझ में जिस तरह से लैंग्वेज में आएंगे, आपने चिट्ठी कुछ और लैंग्वेज में लिखी थी, बीच में हमने प्रोसेसिंग करके उसको वो लैंग्वेज में दी जो स्टोर मैनेजर की समझ में आ सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी सिंपल। सिर्फ आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है पूरा, और ड्रॉ करने के बाद में फिर आपको इसमें के लिंक्स बताना है, रिलेशन बताना है। सिंपल चीज़ है, सिंपल लेवल है। पहली एक डिस्क स्टोरेज है, स्टोर मैनेजर है, यूजर्स है, और उनके बीच में कुछ तो भी एक प्रोसेसिंग इंजन। वेरी सिंपल। और ये जो मैं नाम बता, जैसे प्रोसेसिंग इंजन, ये दिस आर जस्ट नेम गिवन। वो पूरे एक सिस्टम को नाम दिया, इसको नाम दिया एक स्टोर मैनेजर, इसको नाम दिया सपोज प्रोसेसिंग इंजन। सो लाइकवाइज, सो दिस इज वेरी सिंपल डेटाबेस स्ट्रक्चर। स्टोर मैनेजर्स के हम देखिए फंक्शन, देखो अब यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे आपके समझ में आएगा। स्टोर मैनेजर क्या करता है, इट्स ऑर्डर्स टू कैप्टन कुक इन द किचन। जैसे आपने एक ऑर्डर दिया तो स्टोर मैनेजर ने ऑर्डर सपोज कैप्टन को दिया, कैप्टन ने किचन में दिया कुक को, कुक ने फिर गया और मटेरियल खरीद के ले गए। तो ऐसी काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। वो डाटा का स्टोर है, डिक्शनरी के इंडेक्सेस, वो सब वो चेक करता। बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोर मैनेजर क्या क्या करता। बफर डेटा मेन मेमोरी है कि देखता, फाइल मैनेजर है तो उसको स्पेस अलोकेट करता, ट्रांजैक्शन है वो देखता कि ट्रांजैक्शन प्रॉपर हो और ऑथोरिटी है कि नहीं, वो पूरा चेक करता। तो ये हो गए थे स्टोर मैनेजर के कंपोनेंट्स, फेचिंग डेटा, फाइल मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर एंड ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड। अब उसके बाद में फिर जो प्रोसेसर है, क्वेरी प्रोसेसर, ये देखो हमने बोलता ना बीच में एक प्रोसेसिंग इंजन है, वो क्या करेगा, उसमें DDL इंटरप्रेटर है, DLML कंपाइलर और क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन है, कि वो देखेगा कि डेफिनेशन लैंग्वेजेस वाले कमांड है जो सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दे सकता है, या फिर कंपाइलर वाली चीज़ें हैं, और इवैल्यूएशन इनकी चीज़ इनके कमांड्स है। ओके, सो few concepts remaining. So what we'll do, okay, we'll cover it in the next lecture because the lecture is getting extended, maybe 31 to 32 minutes. So it takes also some time for you people to download it and go through it. So what we'll do, we'll cover the remaining part in the next lecture. Till then, thank you class, good day.